سرفرید کی کاوش کے نتیجے میں جیسے بچوں کو رائٹنگ اسکلس بتائیں گے اور بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام بچے ظاہر جب کمپٹیشن ہوتی ہے تو ایک بچے یا 2 یا 3 آگے آتے ہیں. تو اس مرتبہ ہم تینوں جو صاحبان ہیں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فہد بچہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اور ہم ان کو اس کلاس کے اندر انشاءاللہ اب جو ہے کچھ ٹپس آپ کو جو ہے وہ سندیپ سکھائیں گے. اگر آپ اسی طرح عمل کریں گے تو تمام بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو سکتی ہے اور نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان کو اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ انعامات سے بھی نوازا جائے. سر ان کو انشاءاللہ کل انعام بھی ملے گا میری طرف سے سر. سر وہ بھی آپ انعام کریں. آپ بھی سر کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ زبردست کوشش ہے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ یہ آپ نے بڑی زبردست کوشش کی ہے اور بچوں نے اس پر عمل درآمد کی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی نوٹ کر لیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں آج کل ہماری کلاسوں میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو دوسرے سے پڑھنی نہیں آتی. اس کے لیے بھی آپ نے جیسے میرے 7 بہتر ہے. ہم نے پچھلی دفعہ میں نے کچھ کلاسوں میں میں خود بھی تقریباً ہر کلاس کی ریڈنگ لی ہے 6 7 8 جیسے بچوں کو سن چکا ہوں. اس میں 7 کلاس میں نسبتاً کم بچے ہیں جن کی ریڈنگ خراب ہے. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جن کو ریڈنگ نہیں آئے گی وہ پاس نہیں ہوگا چاہے وہ نقل کرے کچھ بھی کرے. اگر اس کو اردو پڑھنی نہیں آتی انگلش پڑھنی نہیں آتی تو وہ بچہ اگلی کلاس میں نہیں جائے گا. تو یہ ابھی سے آپ سوچ لیں جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ ابھی سے اپنی محنت کریں اپنی اردو صحیح کریں تاکہ آپ اس کا پاس ہوں. تھینک یو سر. بھی سر نعیم تھوڑے سے ٹپس دیں گے انشاءاللہ. ہاں میں بھی تھوڑے بچوں کو ٹپس دیں گے تو آپ لوگ سر 5 منٹ آپ لوگ کر لوں گا بیٹا لیکن آپ لوگ نے توجہ سے دیکھنا تاکہ آپ لوگ کی ریڈنگ صحیح ہو. تھینک یو سر. تھینک یو بہت بہت مہربانی. کھڑو دیکھیں ہمیں یہ تو پتا ہے جب ہم انگلش کا کوئی کام لکھتے ہیں تو ہماری انگلش کی کاپی میں ہمارے پاس ہمارے پاس انگلش میں اس طریقے سے لائنیں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا انگلش کی کاپی میں. تو ہم جب کیپیٹل لیٹر میں اس کو لکھتے ہیں یعنی بڑی ABC میں لکھتے ہیں تو اس کو 3 لائنوں میں یہ اوپر کی اے اگر ہم لکھیں گے تو کتنے لائن میں آئے گا؟ 2 بڑی 3 لائنوں میں اوپر کی 3 لائنوں میں. صحیح ہے. اوپر کی جو 3 لائنیں ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسکائی لیٹر. کیا بولتے ہیں؟ اسکائی لیٹر. اوپر کی 3 لائنوں میں جتنی بھی لکھی جاتی ہے اس کو اسکائی لیٹر کہتے ہیں. اسی کو اگر آپ بیچ کی 2 لائنوں میں لکھتے ہیں تو اس کو کیا بولیں گے؟ اسمال لیٹر. یہ بھی اسمال لیٹر میں لکھ رہے ہیں لیکن اس کا نام ہم لوگ لیں گے اس کو بولیں گے گراس لیٹر. کیا بولیں گے؟ گراس لیٹر. اچھا اب اس کے بعد بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ نیچے کی 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں. جیسے جے آ گیا یا چھوٹی جے آ گئی تو یہ نیچے کی 3 لائنوں میں لکھتے ہیں. جو نیچے کی 3 لائنوں میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں روٹ لیٹر. اوپر والے کو کیا بولیں گے؟ درخت. دیکھا آپ لوگوں نے درخت اسٹار پہ غور کرو. سر یہ 2 بچے یعنی جو اوپر کی 3 لائنیں ہوں گی اس کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس کو ہم لوگ بولیں گے
स्काई लेटर यानी आसमान की तरफ, स्काई आसमान को बोलते हैं। फिर उसके बाद जब ये बीच की दो लाइनें होती हैं, बन गया, इसमें बेग बन गया, तारे बेग के हो दो। रूट लेटर, हाँ ग्रास लेटर। फिर नीचे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रूट लेटर, उसको क्या बोलते हैं? रूट लेटर। तो ये नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाता है और ग्रास लेटर बीच की 2 लाइनों में और ऊपर के 3 लाइनों में स्काई लेटर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब जब आप उर्दू में, जब आप उर्दू में काफी लिखते हैं, हमारे उर्दू की काफी में ऐसी लाइनें लिखी हुई हो, ऐसी लाइनें होती है ना, इंग्लिश की तरह करीब करीब तो नहीं होती, नहीं होती ना। तो अब जब हमें अपनी उर्दू से करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी उर्दू में ताजी को घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो हम पहली से लेकर अभी तक इसको लिखते आ रहे, लेकिन आप आज इसको एक कायदे के मुताबिक लिखेंगे। जैसे लफ्ज अलिफ से अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो जितना हम इसको ऊपर से छोड़ेंगे इतना ही नीचे जाएगा। ये अलिफ आ गया हमारा। और इसके बाद बे, जितना जाएगा हाथ ज्यादा जाएगा, ये आपका बे बन जाएगा। बे के बाद क्या आ रहा है? ते बे के बाद ते, ते, से। ये सारे किसी स्टाइल से लिखे जाएंगे। अब इसमें आएगा जी। आज के ये राइटिंग मुकाबले में 7A और 7B में जो राइटिंग का मुकाबला हो रहा था, इसमें माशाल्लाह सर नईम ने दोनों क्लासों को राइटिंग के मुताबिक और सर नईम की मौजूदगी में दोनों क्लासों के जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की। तो आप लोगों ने अपने अंदर ऐसी कंपटीशन पैदा कर दी कि मैंने इनसे अच्छी राइटिंग कर दी, मैंने इनसे अच्छी राइटिंग की, और उसके साथ अपने अपना हिमला और उर्दू की इकाई और उर्दू पढ़ने का वो भी अच्छे से अच्छा करना, और इंग्लिश में भी। सर ने आपको इंग्लिश का भी बता दिया, उर्दू का भी बता दिया। तो इस टिप्स को ज़हन में रखते हुए ये कभी कभी के मौके होते हैं, ये हमारे सीनियर टीचर हैं, कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जिनसे हमें अच्छे से सीखने को मिलता है। आज आपने जो सीखा मैंने भी इसके साथ सीख लिया, मुझे भी समझ में आने तो सर आप इस बारे में बस सही है, ये मेरा कोशिश है। आप लोग इसी के मुताबिक अपना कोशिश जारी रखिए। अब आपका वायरस सीखने का प्रोसेस है, जितना प्रैक्टिस करोगे इतनी रेटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। और इंसान की ज़्यादातर जो हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उसकी ज़ाहिरी हम लोग उसको देखते हैं। अगर वो साफ़ सुथरा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, तो हमें वो अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी, कोई आपके उसको देखेगा तो उसी से वो अक्स करेगा कि ये बच्चा भी अच्छे घर का है और अच्छे अखलाक का मालिक है। तो अपनी रेटिंग अच्छी करो, माशरे को अच्छा करो। जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ना, तो इंग्लिश में हमारे पास कॉपी के अंदर लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 4 लाइनें होती है ना। 4 लाइनों में जब आप बड़ी ABC में यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सही है, तो वो कितनी लाइनों में आती है? 3। कौन सी ऊपर वाली? तो इस लेटर को हम लोग क्या नाम लेते हैं? स्काई लेटर। यानी ऊपर की 3 लाइनों में इसको क्या बोलेंगे? स्काई। और किसी को अगर हम 2 लाइनों में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? स्मॉल। तो बीच वाली जो 2 लाइनें होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल और ग्रास लेटर। सही है। अब इसी के अंदर बड़ी इसमें जैसे हम लिखते हैं नीचे की 3 लाइनों में ना, सही है ना? तो इसको नीचे की 3 लाइनों में कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन जब नीचे की 3 लाइनों में आता है तो इसको क्या बोलते हैं? रूट लेटर। ये स्काई लेटर आ गया, ये स्मॉल तो है ग्रास, और ये रूट। रूट कहते हैं जड़ को। आप लोगों ने देखा ना दरख्त को इस तरीके से होता है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आसमान की तरफ का हो गया, ये इसका तना आ गया और ये रूट आ गया।
झड़ा नीचे के उसमें आया हुआ ना, तो ये तो हमें इंग्लिश में पता है ऐसे करना है, लेकिन उर्दू में हम किस तरीके से करेंगे? हुरूफ ताजीज़ को बोलते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें होती हैं इस तरीके से, तो हम लोग अपने इंग्लिश उर्दू राइटिंग को किस तरीके से मैनेज करें कि वो लिखते हुए हमें अच्छा लगे। तो उसका एक उसूल है इसके लिखने का। सबसे पहले अगर हम अलिफ लिखेंगे तो अलिफ का कायदा ये है कि इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे, जितना यहाँ से शुरू करेंगे इतना ये इस लाइन के नीचे जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? अलिफ। फिर इसी तरीके से बे जब हम लिखेंगे, ये जितना हमारा हाथ चलेगा जाएगा जाएगा, ये हमारा खुद ऊपर चला जाएगा। ये क्या बन गया? उसके बाद जीम जब हम बनाएंगे तो जीम को इस तरीके से लाएंगे और ये पूरा चांद की तरह बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? जीम। इसी जीम को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, यानी ये पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ये घर में जाके आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी हमारी जितनी उर्दू है बाकी या अच्छा, इसके अलावा एक और लफ्ज इसमें जैसे दाल आ गया, दाल हम लोग इन 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे। रे भी 2 लाइनों के दरमियान आएगा, रे भी 2 लाइनों के दरमियान आएगा, दाल भी 2 लाइनों के दरमियान आएगा। अच्छा, अब जितनी इसके अलावा हमारी उर्दू है वो किसके, जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस कर ली उसकी उर्दू सबसे अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है ये मैंने? नून में तो नुक्ता होता है, इसमें नुक्ता है तो इसको क्या बोलेंगे? तो हमारी जितनी उर्दू है वो इसके गिर्द घूमती है। अब कैसे घूमती है ये आप लोग देख लो, घर में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसी को अगर मैं यूं कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसको अगर जरा सा ऊपर कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो हमारी उर्दू किसके गिर्द घूम रही है? नून गुन्ना के, यानी गुन्ना हम लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है गुन्ना के अंदर है। आपने अपनी राइटिंग अच्छी करनी है तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है? अब सपोज हम लोग ने इसकी प्रैक्टिस कर ली घर में जाके,